So we discuss one or two or more questions of the exercise 3.1, and then we move further. See the question number 3 here. In the question number 3, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. A revolution means one round. One round makes an angle of 2 pi, that is 360 degree. So wheel make 360 revolution in 1 minute. Then angle कितना होगा ये देखते हैं. तो इसमें लिखेंगे 1 revolution is equal to 2 pi radians. 360 revolution becomes 360 into 2 pi, that is 720 pi radians. Now through how many radians does it turn in 1 second? We have to find through how many radians does it turn in 1 second. 1 second का निकालना है कितना एंगल होगा. तो 360 revolutions are taken in 1 minute. तो in 1 minute, or you can say 60 second, angle is 720 pi radians. In 1 second, angle is 720 upon 60, that is 12 pi radians. So in radians we have to find the angle they make in the 1 second. It is 12 pi. Further, if we see the question number 5 here, the question number 5, in a circle of diameter 40 centimeter, since diameter is 40 centimeter, therefore radius becomes 20 centimeter. Length of the chord of the circle is 20 centimeter. Now this is a circle, this one is the chord, 20 centimeter. Chord, a line segment joining whose both end points lie on the circle is known as a chord. Radius is 20. This is also radius. It means that this OAB becomes an equilateral angle because all three sides of this triangle are equal. Let chord AB is equal to 20 centimeter. Therefore, triangle OAB is an equilateral triangle. It's an equilateral triangle. Therefore, angle AOB is equal to 60 degree because every angle of equilateral triangle is of 60 degree, or you can say theta is equal to pi by 3 radians. Now theta is equal to L upon R in radians, that is pi by 3 in radians. Length is unknown to us, radius is 20. Comparing pi by 3, L upon 20, pi you can take 22 upon 7 into 3 into 20 is equal to L. It's 440 upon 21. That's the length of the arc here. Now moving to the further, we have to learn some more things, more formulas here. That is trigonometric functions, or you can say as trigonometric circular functions. If we make a axis here, x-axis and y-axis, in the place of x we write here 0 degree, और ये कितना हो जाएगा? It becomes 90 degree. It becomes 180 degree. If you make a circle, it makes an angle. It becomes 270 degree and further फिर 360, पूरा राउंड हो जाएगा. जब रेडियंस में क्या लिखेंगे? 0 रेडियन, पाई बाय 2 इन रेडियंस, पाई रेडियन, इट इज 3 पाई बाय 2 इन रेडियंस एंड इट बिकम्स 2 पाई इन रेडियंस. ठीक है, इसमें हमने क्या याद करना है? ए एस टी सी मीन्स, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, S means value of साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? दैट इज कोसेक. आर पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट. आर पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक. आर पॉजिटिव.
तो ये याद रखेंगे ASTC से, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह से याद रख लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज़ लेके चलते हैं हम यहाँ पर। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसैक आर पॉजिटिव, नॉट साइन कोसैक, वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसैक आर पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ tan एंड cot आर पॉजिटिव, इज वैल्यू ऑफ cos एंड sec आर पॉजिटिव। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा भी है कॉम्प्लीमेंटिंग इसके बारे में, साइन 90 माइनस थीटा, जिसे हम क्या लिखते थे, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, कोसैक थीटा और कोसैक 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये पिछले साल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। π/2 मीन्स 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कम कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन चेंजेस इन टू कॉस बिकॉज दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, tan का कॉट होता है और sec का कोसैक होता है। सो 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। 90 का यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन, tan कॉट, कॉट tan, sec कोसैक, कोसैक और sec। अब अगर आगे मूव करते हैं, ये π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसी π/2 पे देखें तो π/2 प्लस लेते हैं, तो π/2 प्लस लेते हैं हम कहाँ आगे, वी कम्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ लिखेंगे साइन π/2 प्लस थीटा, है कॉम्प्लीमेंट्री अभी, इट इज़ cos थीटा, cos π/2 प्लस थीटा, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, साइन थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, cot π/2 प्लस थीटा, tan sec π/2 प्लस थीटा, कोसैक π/2 प्लस थीटा, sec। इन सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसैक आर पॉजिटिव, साइन और कोसैक की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, मतलब ये साइन की वैल्यू इधर नहीं देखेंगे, यहाँ साइन और कोसैक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब cos π/2 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, tan π/2 प्लस थीटा बिकम्स माइनस cot थीटा, cot π/2 प्लस थीटा बिकम्स माइनस tan थीटा, sec π/2 प्लस थीटा बिकम्स माइनस कोसैक एंड कोसैक π/2 प्लस थीटा बिकम्स sec थीटा। सिर्फ साइन और कोसैक की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि π/2 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसैक आर ओनली पॉजिटिव। नाउ इफ वी टेक according to the π/2 we have taken π/2 minus π/2 plus, now we move to here, that is pi, sin pi minus theta means 180 से कम, फिर से सेकंड के अंदर ही है, पर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, यहाँ पर हम पाई का यूज़ कर रहे हैं, 180 आ रहा है हमारे पास, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 आ रहा है, सब कॉम्प्लीमेंट हो गया, जहाँ π/2 लगा है वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री में आप फॉर्म चेंज करेंगे, साइन को कॉस बनाएंगे, कॉस को साइन, बाकी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आपने देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, tan पाई माइनस थीटा tan थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा सेक थीटा एंड कोसैक पाई माइनस थीटा कोसैक थीटा। साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसैक का कोसैक ही रहेगा, लेकिन इट इज़ लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसैक की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन और कोसैक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर कैसी हो गई, नेगेटिव। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ, ऐसे tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा हुआ। आगे चलें, इस पर क्या लिया था हमने, पाई माइनस, अब लेंगे पाई प्लस, साइन पाई प्लस थीटा, राइट है साइन थीटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, साइन ही रहेगा, कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा,
कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा सेक थीटा एंड कोजेक पाई प्लस थीटा कोजेक थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो साइन का साइन वही, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोजेक का कोजेक ही है। लेकिन पाई प्लस थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सिर्फ टेन और कॉट की वैल्यू यहाँ नहीं देखूंगा, यहाँ देख रहा हूँ टेन और कॉट की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। तो साइन प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोजेक पाई प्लस थीटा माइनस कोजेक थीटा। इसी को आगे देखें अब, मूविंग टू दिस वन, 3π/2 साइन 3π/2 माइनस थीटा, फिर π/2 आ रहा है तो कॉस थीटा बनेगा। देन कॉस 3π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 3π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा कोजेक थीटा, और कोजेक 3π/2 माइनस थीटा सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर 3π/2 माइनस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, टेन और कॉट की, तो टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? तो ये आपने दो बातें ध्यान रखनी है, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन कॉस कॉस टेन में, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, पाई है 2π है 3π है तो वहाँ चेंज नहीं करेंगे। और अगर हमारे पास अब क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट की बेसिस पर हम साइन लगाएंगे, फर्स्ट है तो सारे पॉजिटिव, सेकंड है तो साइन और कोजेक की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ऐसे फोर्थ की भी बात करता हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। 3π/2 माइनस था, अब 3π/2 प्लस लेके चलते हैं, साइन 3π/2 प्लस थीटा कॉस 3π/2 प्लस थीटा, देन 3π/2 प्लस थीटा कॉट 3π/2 प्लस थीटा सेक 3π/2 प्लस थीटा एंड कोजेक 3π/2 प्लस थीटा। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री है और कहाँ लाया कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन का हुआ कॉस, साइन कॉट 10 कोजेक और सेक। नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू किसकी पॉजिटिव है, कॉस और सेक की, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारे यहाँ नेगेटिव आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब आ जाओ 2π पे, 2π माइनस साइन 2π माइनस थीटा कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा कॉट 2π माइनस थीटा सेक 2π माइनस थीटा कोजेक 2π माइनस थीटा। ना 2π साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, फॉर टेन इट इज़ 10, कॉट के लिए कॉट, सेक के लिए सेक, और कोजेक के लिए कोजेक ही रहेगा। बट 2π माइनस लेस देन 2π लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। अब 2π प्लस करते हैं हम, फिर से पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, साइन 2π प्लस थीटा कॉस 2π प्लस थीटा, टेन 2π प्लस थीटा कॉट 2π प्लस थीटा सेक 2π प्लस थीटा और कोजेक 2π प्लस थीटा। फॉर साइन इट इज साइन बिकॉज दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज़ कॉस, टेन के लिए टेन ही रहेगा, कॉट के लिए कॉट, सेक के लिए सेक और कोजेक के लिए कोजेक। नाउ 2π प्लस थीटा कहाँ लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल है, ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और रोज़ प्रैक्टिस करना है, कम से कम एक वीक तक इसे बना के देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हमारा सारा चैप्टर चलेगा, आगे भी और चैप्टर्स आएंगे उसमें से कंसेप्ट हम यूज़ करते रहेंगे। तो आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन करवाए हैं, तो एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कीजिए, ये जो टेबल बना हुआ है इस टेबल की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,
बाकी आगे का डिस्कशन बाद में करेंगे। थैंक यू।